Hello and welcome to your own YouTube channel, Easy Learning with Kalpana Classes. Okay, today we will cover 7th chapter from class 10th English First Flight book, and the chapter is entitled as Glimpses of India, which has three parts. First part is A Baker from Goa, second Coorg, and third part is entitled as Tea from Assam. So, first we will start from the first part, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. Now, it is a pen portrait of a traditional Goan village baker, and the question is, what is pen portrait? Well, as we know that portrait means photo and pen is used to write. So actually when you describe someone or something so elaborately that the reader can visualize that thing, it is called pen portrait. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. First, we will take the meaning of reminiscing nostalgically. Reminiscing nostalgically means remembering about past very fondly or very lovingly. And loaves of bread, it is a plural of loaf. Okay. So, before I start giving you the explanation of these lines, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आपको पता होगा कि बिफोर 1961 पुर्तगाल गोवा was बिफोर आई गिव द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि बिफोर 1961 गोवा जो है वो पुर्तगाल का एक पार्ट था, वो पुर्तगीज़ एम्पायर का एक पार्ट था. लेटर इन 1961 इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे राइटर जो है वो अपने उन दिनों को बता रहे हैं कि उनके जो एल्डर्स हैं वो अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब ये गोवा इन पुर्तगीज पीपल के अंडर में था एंड मैनी पुर्तगीज पीपल वर लिविंग ओवर हियर एंड how they used to live and what special kind of love they used to have for their famous loaves of bread, because here he is especially talking about the bakers of Goa and about their bakery item. So let's start. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. राइटर कहते हैं कि ये ज़रूर है कि जो पुर्तगीज़ पीपल थे वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसको पसंद करने वाले जो ब्रेड मेकर्स हैं वो अभी भी हैं. वो ब्रेड मेकर्स, वो मिक्सर्स, वो मोल्डर्स, दे आर स्टिल ओवर हियर. Those age-old time-tested furnaces still exist. Now, again, we will take the meaning of age-old and time-tested. What is the meaning of age-old time-tested furnaces? Age-old means very old, and time-tested furnaces means though these furnaces and chambers, heating chambers have grown very old, but still they are producing bakery items. They haven't stopped making bakery items. उन्होंने अपने बेकरी आइटम्स को बनाना बंद नहीं किया है. द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश. उन बेकरीज की जो है फायर है अभी तक वो बुझी नहीं है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और राइटर कहते हैं कि जो ये बेकर्स थे जब ये मॉर्निंग में आते थे उनका एक आने का एक अनाउंसमेंट होती थी. दे यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ थर्ड एंड जिंगल साउंड.
और वो इनका आने का हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसमेंट, वो आने का एक अनाउंसमेंट होता था। एंड दिस काइंड ऑफ साउंड इज स्टिल कैन बी हर्ड इन present Goa also. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Or further, he says कि yes, father, the ancestors of these bakers may not be alive, but the family tradition, the family profession is still being carried by the next generation, like son and other next generation people. These bakers, during our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो वो कम बेकर्स जो थे वो विलेजर्स के लिए एक फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे, और वो विलेज में एटलीस्ट दे वर सीन ट्वाइस अ डे। फर्स्ट, जब वो अपने प्रोडक्ट्स को सुबह मॉर्निंग में सेल करने के लिए निकलते थे, एंड सेकंड, जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके वापस जा रहे होते थे अपने खाली बास्केट के साथ। तो वो टू टाइम्स दे वर सीन इन द विलेज। The jingle thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the blow? Not at all. Now, the writer remembers his sweet memories of his childhood. और वो कहते हैं कि जब ये बेकर्स आते थे तो दे यूज टू मेक अ जिंगल साउंड बाय यूजिंग हिज बैम्बू, और उस साउंड से वो सुबह सुबह जो बच्चे थे वो उड़ जाते थे और वो दौड़ पड़ते थे उस बेकर से मिलने के लिए और उनका वेलकम करने के लिए। और ऐसा क्यों था? क्या उनको ब्रेड बहुत ज़्यादा प्यारी थी? नॉट एट ऑल। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. Paskin, here see what is the meaning of Paskin or Bastin. Actually, Portuguese language में और कोंकणी लैंग्वेज में Paskin और Bastin जो है वो हाउस की मेड सर्वेंट को कहते हैं। तो हियर द राइटर सेज कि ये जो ब्रेड थी वो हमारी मेड सर्वेंट पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा लाई जाती थी। What we long for those ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। एक्चुअली उनको क्या चाहिए था, वो क्यों दौड़ते थे मिलने के लिए और उनका वेलकम करने के लिए इन बेकर्स का? उनको वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए थी। यू कैन सी इन द इमेज, ये ब्रेड बैंगल्स जो थे वो एक स्पेशल काइंड के ब्रेड बैंगल्स होते थे विच वर मेड स्पेशली टू अट्रैक्ट द किड्स, और वो अट्रैक्शन वाकई सक्सेसफुल था। इट वाज अट्रैक्टिंग स्मॉल किड्स, और इसके लिए वो सुबह उठ जाते थे और दौड़ पड़ते थे कि वो बेकर आया है एंड दे वांटेड देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये ब्रेड जो है वो स्पेशल तरीके से बहुत स्वीटली बना होता था। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. और जब ये बेकर्स आते थे तो वो उन अपने बैम्बू से बनी लकड़ी से एक जैंग जैंग साउंड का एक म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से वो अपने हेड पे वो अपना बास्केट, बेकरी वाला बास्केट पकड़े होते थे, एंड फ्रॉम द सेकेंड हैंड दे यूज टू हिट द ग्राउंड मेकिंग द साउंड जैंग जैंग साउंड with his bamboo. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और फिर उसके बाद जब वो अपने कस्टमर्स के पास जाते थे तो पहले वो जो लेडी बाहर निकलती थी वो ब्रेड लेने के लिए उसको गुड मॉर्निंग विश करेंगे और अपने बास्केट को बहुत अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से उस बैम्बू पे टिकाते थे। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke. Here, what is the meaning of mild rebuke? Mild rebuke means a small, light scolding. Okay, light scolding. तो ये बच्चे जो थे वो थोड़ा सा शैतानी करते हुए पास में पहुंचते थे,
तो उनको डांटा जाता था, एक माइल्ड स्कोल्डिंग दी जाती थी ताकि उनको उस बास्केट से दूर किया जाए। बट वी वोंट वुड नॉट गिव अप। We would climb a bench on the parapet and peep into the basket somehow. लेकिन ये बच्चे तो बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। They will somehow try to climb on a by climbing on a bench or a parapet and they will try to see in the basket. अब उनको बास्केट में क्यों देखना है? उनको बास्केट में इसलिए देखना है because they want their favorite bangle, bread bangles. और वो तो उनको किसी तरीके से चाहिए ही चाहिए। I can still recall the typical fragrance of those loaves, loaves for the elders and the bangles for the children. Here, first we will take the meaning of fragrance. Dear students, fragrance means smell. Okay? बट आपको एक बात याद रखनी होगी, स्मेल जब हम कहते हैं तो स्मेल निगेटिव वे में भी हो सकती है और पॉजिटिव वे में भी हो सकती है। स्मेल कैन बी गुड एंड बैड एज वेल। बट हम जब वर्ड फ्रेगनेंस वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है श्योरली स्वीट स्मेल। तो द राइटर रिकॉल्स, याद करते हैं, द टिपिकल स्वीट स्मेल ऑफ दोज लोव्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जब वो बेकर आता था तो वो दो तरह की ब्रेड लाता था, ब्रेड फॉर एल्डर्स एंड द स्वीट bread bangles for children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. और राइटर तब कहते हैं कि हम लोग बच्चे इतने खुश हो जाते थे कि फिर हमको अपने टीथ को ब्रश करने का भी ध्यान नहीं रहता था। एंड वाई शुड वी, और हमको करना भी क्यों चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश? एंड आपको शायद याद पता होना चाहिए कि गांव में आज भी विलेजेस में और ओल्डन टाइम्स में तो ऐसा बहुत ही होता था कि लोग मैंगो से एक ट्विग या शूट तोड़ते थे और वहाँ से लीव्स को रिमूव करके दे यूज टू यूज़ दैट ट्विग और शूट as a toothbrush. They used to chew it properly and then it becomes very soft and then they start brushing with that shoot they start brushing their tooth. तो वो कहते हैं कि हम बच्चे इतनी परेशानी क्यों लें कि वी शुड प्लक आउट शूट फ्रॉम द मैंगो ट्री एंड रिमूव द लीव्स एंड देन च्यू इट एंड देन क्लीन अवर टीथ। वाई एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इतनी परेशानी लेने की क्या ज़रूरत है? देन टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। And then he gives further explanation that tiger never brushes his teeth and moreover when once we take hot tea, the hot tea is going to clean everything from your mouth after eating. तो टाइगर ब्रश नहीं करता है और जब हम एक बार गर्म चाय ले लेंगे तो वो तो हमारे मुंह से जो भी हमने खाया है इट विल क्लीन एवरीथिंग। तो वाई वी नीड टू ब्रश एट ऑल? These gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as party or a feast loses its charm without bread. Now, the writer goes to extend telling the importance of this bread, different kind of bread and bakery items, and the importance of the baker in Goan society. तो यहाँ पे कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर उस मैरिज में ब्रेड ना हो, एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड दैट इज़ नोन एज बोल। या फिर कोई पार्टी है या कोई फीस्ट है, इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स चार्म एब्सोल्युटली इफ it is not serving bread in this party. If you are not serving bread, then the party is absolutely going to lose its charm. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. और राइटर कहते हैं कि कितना भी कुछ भी हम बोलें वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि बेकर जो है एक विलेज के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते थे। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognese are must for Christmas as well as other festival. Now further he says if there is a
engagement of some lady's daughter, the lady has to prepare a cake, and bolianas are must for Christmas as well as other festival. The cakes and bolianas, a special kind of bakery item, were must for any auspicious occasion that is going to be there in Goan society. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और इस तरीके से जो बेकर का जो फर्नेस है वो बहुत ज़रूरी था किसी भी गांव में, किसी भी गोवन विलेज में. The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece dress, long frock reaching down to the knees. और यहाँ पे दो राइटर हैं, मिस्टर लूसियो रेड्रिक्स, वो बताते हैं कि उस समय जब पुर्तगीज़ लोग थे इस समय गोवा में, तो वो जो ब्रेड सेलर्स थे उनका एक स्पेशल तरीके का ड्रेस होता था विच वॉज नोन एज कबाई. और ये ड्रेस जो थी वो एक सिंगल पीस ड्रेस होती थी विच वॉज रीचिंग टू द नी लेंथ. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. और फिर वो याद करते हैं कि जब वो छोटे थे उस समय उन्होंने बेकर्स के ड्रेसिंग में थोड़ा चेंजेस भी देखा, नोटिस किया था. एंड दीज बेकर्स वर सीन wearing shirt and trousers also, and but these trousers were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pedo. और फिर वो याद करते हैं कि इस तरह के जो पिक्यूलियर ड्रेस होती थी जो उनके समय में पेडस पहनते थे, थोड़ा सा फुल लेंथ से थोड़ी सी शॉर्ट पैंट पर हाफ पैंट से थोड़ी लॉन्गर वन और शर्ट, इस तरह की जो ड्रेस थी वो उन्होंने खुद भी देखी थी कि ये पेडस पहनते थे. और आज भी अगर कोई इस तरह की ड्रेस पहनता है तो वेरी इजीली दे आर गेटिंग कमेंट इन गोवा दैट ही इज जस्ट लाइक अ पेडर. The baker usually collects his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Now, the writer recollects that ये बेकर्स जो थे वो अपना मंथली बिल जो है वो बनाते थे, अपना अकाउंट मेंटेन करते थे. और वो उनका अकाउंट जो था वो किसी वॉल पे पेंसिल द्वारा मेंटेन किया जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और ये बेकिंग जो है उस समय काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. और आज भी बेकिंग और फूड से जुड़े जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल माने जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वो मेरे ख्याल से शायद कभी, जब तक एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड. तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और उन बेकर और उनकी फैमिली कभी भूखे नहीं रहते थे, कभी वो स्टाफ नहीं करते थे. वाई सो? बिकॉज दे बिलोंग टू फूड इंडस्ट्री, दे बिलोंग टू बिलोंग टू कुकिंग एंड बेकिंग. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. और चूंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था तो बेकर, उनकी फैमिली मेम्बर्स और उनके सर्वेंट्स भी वो हमेशा खुश दिखते थे, प्रॉस्पेरस दिखते थे. देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमोनी टू दिस. और उनकी जो प्लम फिजिक है, जो थोड़ी सी चबी फिजिक है, फैटी चबी फिजिक है, दे यूज टू हैव फैट ऑन देयर बॉडी. तो वो जो फिजिक है, इस तरह की फिजिक है, इट वॉज अ प्रूफ दैट दे वर रियली वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज easily compared to a baker. और फिर वो काफ़ी फनिंगली ह्यूमरसली कहते हैं कि आज भी अगर किसी की बॉडी जैक फ्रूट लाइक प्लम बॉडी है, थोड़ी हैवी फैटी बॉडी है, the person is going to receive the comment very easily that he is looking like a
baker. So that is the end of the chapter, and I hope that you understood it properly. And if you like my video, please like and subscribe it. Subscription is free. Thank you very much for watching it.